Hello all my dear students, a precious good morning to all of you. I am Ajay Prakash Tiwari, your science teacher, and I am welcoming you to all once again to your official YouTube channel, that is what, Ajay Tiwari Science Classes, on the behalf of Stubra Singh Children Academy, Kalan Jaunpur. And as you know that in previous topic of chapter number 9, reproduction in animals, we have discussed about the male and female reproductive system, in which we have discussed about that male reproductive system has primary and secondary sex organ. Similarly, female reproductive system have also primary and secondary sex organ. In male reproductive system, primary sex organ is known as testis that produces sperm as well as male sex hormone, that is testosterone, while in the case of female, ovary is known as primary sex organ and it produces female sex hormone, we can say that is estrogen, as well as it also releases the egg or ovum. So we have just now make male and female gamete. Now there will be fusion of male and female gamete, and that process will be known as fertilization. So before discussing the process of fertilization, let's quickly discuss about the male gamete, that is sperm. Sperm is known as male gamete. ठीक है बेटा, ये मेल गैमीट होता है. एज यू नो दिस इज टैडपोल शेप. टैडपोल शेप, मोटाइल स्ट्रक्चर्स produced in testis by the process of spermatogenesis. यानी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है? टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहा है. एंड देर आर मोर देन 200 to 300 millions ऑफ द स्पर्म दोज आर जस्ट रिलीज आफ्टर वन क्वाइटिस, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज किए जाते हैं. ध्यान रखने वाली बात क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस से बनते हैं. कहाँ? टेस्टिस से. लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. लेट्स डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर. सो लेट्स क्विकली सी. You will get here a dense nucleus, we are getting here, and there is a special structure that is known as acrosome. This is a head portion, इसको हम क्या कहते हैं? हेड रीजन. ठीक है. There is a neck, यहाँ पे छोटी सी नेक होती है बेटा. उसके बाद आपको दिखेगी क्या? मिडिल पीस, एंड देन आफ्टर मिडिल पीस यू विल सी टेल पोर्शन. आपको क्या दिखेगा? टेल ऑफ द स्पर्म. And here there is a presence of spiral mitochondria. So this is neck. ठीक है. This is middle portion, or we can write middle piece. ठीक है बेटा. इसको हम कहते हैं tail. Okay. So these are the parts of sperm. Let's quickly discuss the functions. First, head. What is the role of head? It contains nucleus and acrosome. Nucleus and acrosome, and acrosome release enzymes that digest the outermost layer of ovum and help in the fertilization. तो ये तो बात हो गई बेटा किसकी? हेड पोर्शन की. लेट्स कंसीडर द सेकेंड वन इज दैट इज मिडिल पीस. मिडिल पीस का क्या रोल होता है? इट कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया. It contains mitochondria that provide the energy to moving स्पर्म. यानी स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करती है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि है कहाँ? मिडिल पीस में. थर्ड, टेल. टेल क्या करती है? हेल्प इन द
हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म, हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ स्पर्म। तो ये तो बेटा डिटेल आउटलाइन था किसका, मेल गैमीट का, जो कि स्मॉल मोटाइल होता है। लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द फीमेल गैमीट। हो प्यारे बच्चों, डिस्कस करते हैं अब फीमेल गैमीट के बारे में। फीमेल गैमीट ये क्या होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एग और ओवा और ओवम, ठीक है। रिलीज्ड बाय ओवरी, किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ओवरी के द्वारा। रिलीज बाय ओवरी, ओनली वन इन ईच मंथ, यानी हर महीने में केवल एक एग रिलीज किया जाता है, ठीक है बेटा। इट इज ऑल्सो नॉन मोटाइल, ये क्या होता है, नॉन मोटाइल, ठीक है। लेट्स डिस्कस द स्ट्रक्चर। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हियर यू विल गेट न्यूक्लियस, इनसाइड दिस देयर इज ए साइटोप्लाज्म, यहाँ पे आपको डेंस साइटोप्लाज्म मिलेगा। यू विल गेट 2 layers, this one, and you will get another layer with special name, ये आपको लेयर मिलेगी यहाँ से, ठीक है। स्पेशल टाइप की लेयर है बेटा, ओके। सो वी आर गेटिंग द लेयर हियर। This layer is known as corona radiata, यानी कोरोना वर्ड बेटा बायो में बहुत पहले आ गया था, ठीक है। इसको आप कहते हो जोना पेलुसिडा, ठीक है। दिस वन इज न्यूक्लियस, अंदर इसके जो भरा हुआ है दैट इज साइटोप्लाज्म, यानी याद करिए अभी हमने आपको बताया था एक्रोसोमिक एंजाइम रिलीज करता है। दैट एंजाइम, ये जो आप बाहर की लेयर दिख रही है ना, स्पर्म आएगा कुछ इस तरह से, यहाँ से देखिए स्पर्म आया यहाँ से इस पे और अटैक करेगा कोरोना रेडिएटा लेयर पे और अपना एंजाइम रिलीज करेगा। जैसे ही एंजाइम रिलीज करेगा इसमें से कोई एक स्पर्म अंदर इंटर करेगा और इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। उसी को आप क्या कहते हो, फर्टिलाइजेशन कहते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फीमेल गैमीट। ध्यान रखना है फीमेल गैमीट को हम ओवम, एग या ओवा कहते हैं, ओवरी के द्वारा रिलीज किया जाता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द, और ध्यान रखना एक ही प्रोड्यूस होता है 8 मंथ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेल एंड फीमेल गैमीट। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। ओके प्यारे बच्चों, तो हमारा अगला टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ, दिस इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट। It means that we are talking about sperm and ovum. Fusion of male and female gamete, sperm and ovum, resulting in the formation of diploid zygote, resulting in the formation of diploid zygote is called fertilization, is called fertilization। ध्यान ये रखिए बेटा, फर्टिलाइजेशन में Z और S आप दोनों का यूज कर सकते हो, ओके। सो व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? साइट ऑफ
फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन की साइट कहाँ होती है, यानी होता कहाँ है? तो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन fallopian tube, takes place in fallopian tube, that is also known as oviduct, fallopian tube और oviduct. This is the site of fertilization. यहाँ पे होता क्या है बेटा, कुछ यहाँ से देखिए. This was, मान के चलते हैं ये था sperm. स्पर्म क्या था, ये हैप्लॉइड था, यानी N1 सेट ऑफ क्रोमोसोम यहाँ पे था, प्लस यहाँ पे देखें ओवम, ओवम के पास क्या था, N सेट यानी सिंगल सेट था क्रोमोसोम का. इनके बीच में क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ बेटा, और बना क्या, जाइगोट. जाइगोट क्या है, 2n, इट मीन्स दैट इट हैज 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, एक ये वाला एक ये वाला. कैसे, आप सभी को पता है कि ह्यूमन की बॉडी में कितने क्रोमोसोम होते हैं, ह्यूमन जीनोम यानी जो हमारा जीनोम है उसमें टोटल कितने क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम. कितने क्रोमोसोम है बेटा, 46 क्रोमोसोम. अब ये जो 46 क्रोमोसोम है इसमें से स्पर्म में कितने होते हैं, स्पर्म हैज 23 प्लस ओवम हैज 23, दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म जाइगोट, यानी यहाँ पे फिर से कितने हो जाएंगे, 46. यानी ये सभी क्या थे, हैप्लॉइड थे, हैविंग सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, और बना क्या, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दैट इज जाइगोट हैविंग 46 क्रोमोसोम्स. सो दिस वाज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन. Now, fertilization may takes place inside the body as well as fertilization may takes place outside the body. So now we will discuss types of fertilization. So before discussing types of fertilization, एक आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा देते हैं बेटा. जैसा कि मैंने आपको बताया था, दिस वाज व्हाट, एग. इसके पास यहाँ पे क्या था, साइटोप्लाज्म. ओके, देयर वाज 2 लेयर्स. एक लेयर ये थी आपकी और दूसरी लेयर कुछ इस तरह से थी. मैं इसको मॉडिफाइड तरीके से बना दे रहा हूँ. ओके, दीज वर द आउटर मोस्ट लेयर. नाउ देयर विल बी एंट्री ऑफ स्पर्म. स्पर्म विल अटैक, यहाँ पे स्पर्म आएगा और अटैक करेगा. दिस वन अगेन, दिस वन अगेन. स्पर्म आ रहा है, अटैक कर रहा है. आउट ऑफ दिस एनी वन, कोई एक इंटर कर जाएगा अंदर. ये न्यूक्लियस था, ठीक है. अब एक ये लेयर आपकी यहाँ से थी, एक लेयर आपकी यहाँ से जो डाइजेस्ट हो गई थोड़ी सी, ठीक है. और स्पर्म कहाँ पहुँच गया, अंदर पहुँच गया, ठीक है. स्पर्म यहाँ पहुँचेगा. फिर इसके पास यन था और एग के पास क्या था, यन, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2n जाइगोट बना लेंगे. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. ओके बेटा, हमारा अगला टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ fertilization. Types of fertilization. So there are 2 types of fertilization. The first one is internal fertilization. Internal fertilization. Okay. दूसरा हम देखेंगे बेटा external fertilization. External fertilization. So there are 2 categories of fertilization. The category number 1 is internal fertilization, second one is external fertilization. It is clear by the name. Internal means that takes place inside the female's body. Inside the female's body, takes place inside the female's body. External means that outside. तो आप लिख सकते हो it takes place outside the female's body. It takes place outside the female's body. यानी ध्यान देने वाली बात क्या है, इंटरनल, इन लगा हुआ है तो अंदर फीमेल की बॉडी के. एक्सटर्नल मीन्स दैट आउटसाइड द बॉडी. लेट्स कंसीडर अनदर वन.
here in internal fertilization less number of eggs are produced या हम कह सकते हैं ह्यूमन बीइंग में तो बेटा एक ही प्रोड्यूस होता है, लेस नंबर ऑफ eggs are produced. Here large number of eggs are produced. Large number of eggs are produced. क्यों? हर चीज का एक कारण होता है, तो यहां पे भी है because most of them destroyed. मैं कहने का मतलब क्या है बेटा, ध्यान दीजिए. अगर फीमेल्स की बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल्स की बॉडी के अंदर, इसका मतलब उसको सेफ इन्वायरमेंट मिला हुआ है. लेकिन यही चीज़ अगर फीमेल के बॉडी से बाहर हो रहा है, वाटर में हो रहा है, पानी में हो रहा है, तो जितने एग रिलीज होंगे वो सभी ऑफ स्प्रिंग में कन्वर्ट नहीं होंगे. क्यों? क्योंकि इसमें से ज़्यादातर कुछ और एनिमल्स के द्वारा खा लिए जाएंगे. ठीक है, कुछ वाटर करंट के माध्यम से इधर उधर चले जाएंगे, कुछ स्पर्म तक रीच ही नहीं कर पाएंगे. सो ओनली फ्यू क्या हो पाते हैं, स्पर्म तक पहुंच पाते हैं या स्पर्म एग तक पहुंच पाता है. सो दैट्स व्हाई दे आर रिलीज इन ह्यूज अमाउंट. ओके, लेट्स कंसीडर इन द लास्ट एग्जाम्पल में बेटा आप इसमें ह्यूमन बीइंग का एग्जाम्पल लिख सकते हो. ठीक है, काऊ, डॉग, बुफेलो, etc. यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल. यू विल कंसीडर फिश एंड फ्रॉग. फिश और फ्रॉग में बेटा क्या है, फिश और फ्रॉग में क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. हम लोगों में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सो दिस वाज ऑल अबाउट टाइप ऑफ fertilization. Now we will discuss type of organisms on the basis of they produce the offspring. यानी वो कैसे offspring को प्रोड्यूस करते हैं उसके बेसिस पे हम देख लेंगे organisms के टाइप. ओके, अब यहां से देखेंगे टाइप्स ऑफ organisms. टाइप ऑफ organism on the basis of how they produce offspring. How they produce offspring. यहाँ से बेटा हम दो कैटेगरी देखेंगे. फर्स्ट विविपेरस एंड सेकेंड ओविपेरस. विविपेरस एंड ओविपेरस. लेट्स कंसीडर विविपेरस. हियर organisms give birth to their child, or we can write offspring is known as viviparous. For example, you can take the example of mammals, जहाँ पे आप देखेंगे human being, cow, dog, horse, buffaloes, etc. Let's consider oviparous. These are the organisms that lay the eggs. Eggs and that later on hatches into offspring. यानी यहाँ पे क्या होता है, oviparous animals they lay the egg. Let's consider the example. You will consider the example here. Birds. We can take the example of snakes. ठीक है, birds, snakes, or we can write here birds. Here we can write reptiles, and let's consider few more. You can take the example of frog, and as you know that frog is amphibian. It means that we can write the category of the animals in which we can include birds. Birds are, as you know, included in the apes. bird को हम कहाँ रखते हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी apes में. स्नैक्स को हम कहाँ रख सकते हैं बेटा, रेप्टाइल्स में. एंड फ्रॉग जैसा कि मैंने लिखा है एम्फीबियंस. सो
Oviparous animals may include the category of apes, in which we can kept birds, we can kept snakes in the category of reptiles, we can kept amphibians, and example of that is what? Frog. So all these are the oviparous and all these are the viviparous animals. In viviparous animals, organism give birth directly to the child or offspring. Here we can consider the example of human, cow, dog, horse, buffaloes and various kind of animals. Those are found near you. So this was all about the types of organism on the basis of how they produce the offspring. So all my dear students, let's quickly discuss about the difference between zygote and embryos. ज़्यादातर आप कंफ्यूज रहते हैं कि सर इसमें डिफरेंस क्या होता है. So zygote is just what? Single cell, okay, and this one is what? This have multiple organ system as well as tissues. So we can say that it has, और हम इट नहीं लिखेंगे क्योंकि बेटा लिविंग है, यहां से हम लिखेंगे हैविंग ऑर्गन्स, और वी कैन राइट टिश्यूज. यहां पे ऑर्गन और टिश्यूज होते हैं, ठीक है. यहां हम कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? zygote इज नोन एज फर्टिलाइज्ड एग, और वी कैन राइट फर्टिलाइज्ड एग इज नोन एज. का मतलब क्या हुआ? हम इसको साइंटिफिक टर्म्स में क्या कह सकते हैं? zygote is formed as a result of fertilization. यानी जाइगोट कब बनता है? ये इंड प्रोडक्ट होता है किसका? फर्टिलाइजेशन का. एंड embryo is formed after fertilization when zygote start development. यानी हम बात करें अगर जाइगोट की, तो जाइगोट बनता है बेटा, ये रिजल्ट होता है किसका? फर्टिलाइजेशन का. लेकिन अगर बात करेंगे एम्ब्रियोज की, सो एम्ब्रियोज क्या होते हैं? जाइगोट जब डेवलप करना स्टार्ट कर देता है. कैसे? मान के चलते हैं ये जाइगोट था, डिप्लॉयड था, इसके पास सिंगल सेल्स थी. यहाँ पे सेल डिवीजन हुआ, देयर आर 2 cells, अगेन देयर विल बी डिवीजन, देयर विल बी 4 cell, अगेन देयर विल बी डिवीजन, देयर विल बी 8 cell, ओके, अगेन देयर विल बी डिवीजन, देयर विल बी 16 cell. कितनी सेल्स हो जाएंगी? 16 हो जाएंगी, ठीक है. लाइक दिस बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स. So again there will be division, 32 cell stage. So now 32 cell stage zygote is just implanted into the endometrial lining of the uterus, and then after their development is started. तो उसी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है. जब वहाँ पे सेल्स का प्रॉपर डिवीजन हो जाता है, ठीक, ऑर्गन का डिफरेंशिएशन होने लगता है, तो उस स्टेज को हम लेके चले जाते हैं एम्ब्रियोज. ध्यान ये रखिएगा बेटा, फीटस क्या होता है? एक तीसरी कैटेगरी आती है फीटस. तो जो अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज होता है, अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज वी कैन राइट नियरली 7 weeks. अर्ली डेवलपमेंट स्टेज when various organs or various parts of the body are not visible. यानी अर्ली स्टेज किसके? जाइगोट का डेवलपमेंट का, जहां पे जो बॉडी के पास थे वो क्लियरली विजिबल नहीं थे, आइडेंटिफिकेबल नहीं थे. दैट कंडीशन इज नोन एज एम्ब्रियोज अप टू 7 weeks मैक्सिमम. एंड व्हेन ऑल द बॉडी पार्ट्स आर विजिबल, दे आर क्लियरली आइडेंटिफिकेबल, दैट कंडीशन इज नोन एज व्हाट? fetus. So you should not to be confused in embryos and fetus. embryos क्या है? अर्ली स्टेज है. fetus क्या है? लैटर स्टेज है. zygote क्या है? फर्टिलाइज एग को ही हम क्या कहते हैं? zygote. ये बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन. सो ऑल दीज वर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर चैप्टर नंबर 9. And I hope that after watching the video there will not be any doubt. In the next videos we will just cover
the remaining portion of the chapter, and that will be also the last video. So once again, thanks to all for watching the video, and like always, have a nice day, keep smiling. Jai Hind.